दोस्तों, इससे पहले कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं, आइए देखते हैं उनकी चंद तस्वीर और एक छोटा सा वीडियो। Hi, I'm Iti Tyagi. I'm an artist, designer, and a social entrepreneur. I'm the founder of Craft Village, India's largest craft organization working towards preserving and promoting rare crafts of India. In 2005, during a trip to Odisha and Kutch, I found out excessive supply, low quality presentations, repetitive designs, and absolutely no awareness towards craft and culture at large. This was quite worrisome, as the subject matter concerned was very niche, yet the stakeholders were not getting benefited at all. In 2015, I founded Craft Village, India's first artist residency focusing towards craft and design intervention. Craft Village started with baby steps by creating awareness through craft masterclasses and research programs. In the process, we discovered that there were no private, national, or global awards that could recognize talent and create avenues for them. Hence, in 2017, we founded First International Craft Awards. And to our surprise, we got the nominations from 40 countries. This result was fabulous, and today we are known as Academy Awards of Crafts. The effort of recognizing talent merely was not enough, as India was full of hearts and bazaars on smaller scales. There was not even a single business platform that could portray luxury in crafts. Now was the need to create India's largest platform where buyers, makers, craftsmen, and brands could come together for a common dialogue, business, and entertainment. Our second IP, India Craft Week, was created solely for this purpose. Today, we are India's official and world's second largest craft week. Craft Village is an ecosystem, and hence it captivates consumers' attention. With India Craft Week and International Craft Awards, we have a global presence that we only wish to scale in coming times. From being India's youngest craft organization to becoming world's largest craft organization, it's our dream getting bigger day by day. Thank you. आदाब, सलाम, नमस्कार. Welcome to New India Education Trust Beyond Classroom Motivation Web Series. दोस्तों, इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात ऐसे नौजवान साथियों से कराते हैं जो अपने करियर में बहुत कामयाब हुए, काफ़ी उन्होंने मेहनत की और अपने बलबूते पर कामयाबी ने जो है वो उनके कदम चूमे. तो आज हमारी ख़ास मेहमान हैं, इनका नाम है इति त्यागी. इति त्यागी is the founder of Craft Village and India Craft Week. ये एक बहुत ही जबरदस्त सोच की मालिक हैं और उस सोच को लेकर के इन्होंने ये क्राफ्ट विलेज की शुरुआत की और बहुत सारे आर्टिस्ट को पूरे इंडिया से आर्टिस्ट को ढूंढती हैं, इकट्ठा करती हैं, उनको क्राफ्ट विलेज में लाती हैं और फिर उनकी जो कलाकारी है वो पूरी दुनिया के सामने पेश करती हैं. इति त्यागी को अपने इस काम के लिए इति त्यागी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT निफ्ट, जो कि हिंदुस्तान का बहुत ही टॉप क्लास फैशन इंस्टीट्यूट है. फैशन इंटीरियर डिजाइनिंग फ्रॉम KLC स्कूल ऑफ डिजाइन लंदन. और आपको दो बहुत ही जबरदस्त अवार्ड्स आपको मिले हैं, आपको उन अवार्ड से नवाजा गया है, यानी आपके काम को सराहा गया, रिकॉग्नाइज किया गया. वो दो अवार्ड्स हैं मैजिक वुमेन अचीवर्स अवार्ड इन 2015 एंड नारी शक्ति पुरस्कार जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
किसी भी सिविलियन ऑनर में कोई वीमेन के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ये 2 अवार्ड आपको मिले हैं। इतनी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको आपकी मेहनत को लोगों ने रिकग्नाइज किया, और लोगों ने बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी आपको जो है वो अवार्ड दिए। वेलकम टू आवर दिस वेब सीरीज। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग काम के चक्कर में उलझ जाते हैं और हमें बात करने का मौका नहीं मिलता अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से। ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। इति हम चाहेंगे कि आपने जो मेहनत की है अपने जीवन में, और जिस तरीके से मैंने आपको बहुत बचपन से देखा है, बहुत कम उम्र से आपको देखा, और फिर आप इस स्टेज तक पहुंचे हैं। थोड़ा सा अपने जो ये जो जर्नी है, जो आपका सफर है, तालीम का सफर, और फिर आपका करियर, और फिर आपने खुद ये इनिशिएटिव लिया कि आपने क्राफ्ट विलेज स्टार्ट किया, उसके बारे में, इस सफर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मेरे सफर की शुरुआत एक्चुअली उस दिन हुई थी जब मैं आपसे मिली थी। ये बात मैं कई जगह बोल चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं टीवी पे जाती हूँ, मैं वहां भी ये बात बोलती हूँ कि मेरे पास आवाज थी लेकिन शब्द नहीं थे। मेरे पास अगर शब्द थे तो वो जज्बा नहीं था। तो मेरे उन शब्दों को बाहर निकालने के लिए, मेरे उस जज्बे को बाहर निकालने के लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ। यदि आपने मुझे मंच नहीं दिया होता तो मेरे शायद इस सफर की शुरुआत नहीं होती। I think I was doing my duty. No. सर, एक गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है अपने शिष्य को बताने में कि तुम्हारा सफर क्या है। अक्सर जहां भी आज मैं पहुंची हूँ, जो भी आप इसे मेरी कामयाबी समझते हैं, दरअसल ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये मेरे माता पिता और मेरे उन गुरुओं की कामयाबी है, जिन्होंने मेरे अंदर उस अपॉर्चुनिटी को देखा और उन्हें लगा कि ये इस बच्चे को हम आगे कहीं ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले समाज में एक बहुत सही जरूरत होती है एक सही दिशा दिखाने वाले की, एक सही पारखी की, जो हम कहते हैं। तो मेरा सफर स्कूल से जब शुरू हुआ, जो मंच पे बोलने का सफर शुरू हुआ, उसने मुझे कहीं ना कहीं ये बताया कि मैं अपनी आवाज को, अपने भावों को और अपनी सोच को दुनिया तक ले जा सकती हूँ। स्कूल से निकलने के बाद मुझे फैशन में, एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट थिएटर में था, ये कोई नहीं जानता। मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस करना चाहती थी और मैं एनएसडी जाना चाहती थी। मेरे दिमाग में जो छवि थी शबाना आजमी की, स्मिता पाटिल की, नसरुद्दीन शाह की, मैं ओमपुरी की, मैं उस छवि को लेके आज तक, आप जानते हैं कि मैं अपने खुद सीरीज बनाती हूँ, टीवी सीरीज, और मैं उनको लॉन्च करती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो रह गई थी, पर वो हो नहीं पाया और मुझे फैशन डिजाइन की तरफ मुड़ना पड़ा। मैंने फैशन डिजाइन करा, लेकिन फैशन डिजाइन करने के बाद मेरा सफर जो है वो ग्लैमर की दुनिया में मुड़ा। मैं मिस इंडिया तक गई, मैं मिस इंडिया के फाइनलिस्ट तक पहुंची। बहुत कम लोग ये बात को जानते हैं, लेकिन मॉडलिंग मेरा उद्देश्य नहीं था। मुझे वहां से अपनी पहचान नहीं बनानी थी। मैंने अपने सफर को एक अलग दिशा दिखानी चाहिए, और मैंने जो देश के हमारे गांव से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनका काम है, उसको मैंने देखा जब मैंने एक स्पोर्ट्स में काम करना शुरू किया। मैं एक स्पोर्ट्स में फैशन डिजाइन करती थी, प्रोडक्ट डिजाइन करती थी। बड़े बड़े बायर्स, वॉलमार्ट, नीमन मार्कस, टारगेट, हॉबी लॉबी, इन सब बायर्स को हमारे प्रोडक्ट जाते हैं हमारे देश से। तो मैं अक्सर देखती थी कि बड़े बड़े स्टोर में यूएस और यूके में जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, ये बनते तो हमारे देश में है, हमारे गांव में है, लेकिन हमारे कारीगर को इसके पीछे क्या मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बेचैनी सी रहती थी कि और उस कारीगर को कोई जानता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कोई जानता नहीं है। उन एक्सपोर्ट हाउसेस के पास ज्यादा मार्कअप चला जाता था। तो मैं उस जद्दोजहद में बहुत साल तक उलझी रही, लड़ती रही। मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया भी है, जो भारत का सर्वोच्च इंस्टीट्यूट है डिजाइन का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, मैंने वहां भी पढ़ाया है। लेकिन मेरी जो अंदर की ये बेचैनी थी, ये कहीं खत्म नहीं हो रही थी। मुझे कुछ तकरीबन 6 से 7 साल लगे, जब मैं कुछ नहीं कर रही थी और मैं एकदम खाली बैठी थी। तब मैंने दोबारा से पढ़ाई करने के बारे में सोचा, क्योंकि मेरा को लगा मेरा सफर कहीं रुक गया है। इस दौरान मुझे मेंटल हेल्थ से डील करना पड़ा। मैं एक बहुत बड़ी उस गहराई से निकल कर आई हूँ, अंधेरे के, जहां से लोगों के लिए सोच पाना बहुत मुश्किल होता है कि आप निकल सकते हैं। लेकिन मेरी दृढ़ता थी, मेरा एक अंदर का आत्मविश्वास था कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और उस सफर से निकल के
मैंने वापस पढ़ाई स्टार्ट करी। सर, जो मैंने स्कूल में कर लिया था, जो कॉलेज में कर लिया था, वो वापस मैंने 30 साल की उम्र में फिर से शुरू किया और मैंने इंटीरियर डिजाइन की पढ़ाई करी लंदन से। वो पढ़ाई करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस वापस आया। सबसे पहले तो शिक्षा हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को जागृत करती है। हमारा जो कॉन्फिडेंस कहीं खो गया है, जो हमारा ज्ञान कहीं खो गया है, जो दिशा हमारी कहीं खो गई है, वो मुझे वापस मिली अपनी उस पढ़ाई से। उसके बाद मैंने अपने सफर की तैयारी करी कि कैसे मैं एक ऐसी जगह बनाऊं जहां पे मैं देश के हुनरमंद लोगों को लाके जोड़ूं, जो अपने काम से, अपने शिल्प से, अपनी कला से अपने देश को और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2015 में हमने क्राफ्टलेज की स्थापना करी। ये भारत की सबसे युवा शिल्प संस्था है और आज 5 साल में हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में एक नेशनल एंटिटी के रूप में भारतीय कला को रिप्रेजेंट करते हैं। Oh, that's great. तो ये 6 साल में हमने ये मकाम पाया है, लेकिन इस मकाम को पाना भी मैं आज अपनी कामयाबी नहीं कहती, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा है। ये ऐसा सफर नहीं है जो एक दिन में आप कामयाबी हासिल कर लेंगे और आपने एक मेडल जीत लिया तो आपको किसी ने दे दिया। चाहे वो राष्ट्रपति भवन जैसी जगह पे जाके एक सम्मान को लेना हो, चाहे वो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में नेशनल एंटिटी बनाना हो, ये एक अंततः चलने वाला सफर है। ये एक ऐसा सफर है जो कि आखिर पल तक चलता रहेगा। जब तक मैं देश के हर उस कारीगर को नहीं जोड़ लूं जो अपने समुदाय के लिए काम करता है, जो अपने कम्युनिटी के लोगों को जोड़ता है। आप ये बात जरूर देखिए सर, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट होता है वो आइसोलेशन में काम करता है, वो अकेले अपने लिए काम करता है। लेकिन जो क्राफ्टमैन होता है वो अकेले काम नहीं करता है, उसके साथ उसका परिवार और उसका समुदाय जुड़ा होता है। तो एक क्राफ्टमैन जो होता है वो आर्टिस्ट से ज्यादा बड़ा होता है, मैं हमेशा मानती हूँ। तो जब तक मैं उन सब तक नहीं पहुंच जाऊंगी तब तक मुझे नहीं लगता मैंने कामयाबी हासिल करी। नहीं, ये आपका बहुत बड़ा मिशन है आपका, और मुझे ऐसा आभास भी है और लगता भी है कि आप अपने इस मिशन में कामयाब हो रही हैं और काफी हद तक कामयाब हो चुकी हैं। और जो आप चाहती हैं कि आप देश के हर क्राफ्ट्समैन के पास आप जाना चाहती हैं, उनको आप दुनिया के सामने पेश करना चाहती हैं, आप इस मिशन में कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं। आप ये बताएं कि आप कैसे, मतलब ये आप आइडेंटिफाई कैसे करती हैं कि कोई खास पर्टिकुलर क्राफ्ट है जिसको आप देखती हैं, या किसी भी तरह का क्राफ्ट? बहरहाल गांवों में तो बहुत आप देखेंगे, गांव हमारे जो हैं वो उसमें आर्ट, कला भरी पड़ी है, टैलेंट भरा पड़ा है। उन औरतों में भी हम देखेंगे कि जो औरतें, जिसको ये कहा जाता है कि ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं इकोनॉमी के लिए, वो औरतें भी अगर आप देखें, मैंने खुद ने देखा है गांव में, मैंने अपने गांव में देखा है औरतों को, जब गेहूं कटता है, गेहूं की फसल कटती है, तो उसकी फसल कटने के बाद जो उससे जो नलियां निकलती हैं गेहूं की, लंबी लंबी, उनसे वो डलियां बनाती हैं जिनमें रोटी रखना या कुछ उस तरह की चीजें रखती हैं, और बड़ी कलरफुल बनाती हैं वो। इसी तरीके से पेपर से बहुत सारी चीजें बनाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो औरतें करती हैं, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करती हैं और किस तरीके से पेश करती हैं? सर, ये सच में एक बहुत बड़ी तकलीफ है जिससे हम जूझ रहे हैं। आज भी क्राफ्ट को एक बिजनेस सेक्टर नहीं माना जाता। आज भी इन्वेस्टर सामने नहीं आते जो क्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट दें। आज भी बैंक के पास लोन नहीं है। मैं कल ही एक टॉक में थी जहां पे मैं लोगों से सुन रही थी, जो ईडीआई जैसे प्लेटफॉर्म के लोग हैं या सरकारी लोग बैठे थे, वो बता रहे थे कि अभी भी बैंक्स लोन नहीं दे रहे हैं, कह के कि अरे आप क्राफ्ट करते हैं। वीवर्स को लोन नहीं दिया जाता है, ये कह के कि अरे आप क्या बिजनेस करते हैं। जबकि सारे क्राफ्टमैन इस देश के सेल्फ मेड बिजनेस पर्सन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, शुरुआत से हैं। आज हम स्टार्टअप डे मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे घोषित किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो शहरों में बैठे स्टार्टअप कर रहे हैं वो उन्हें लग रहा है कि उनके लिए बनाया गया है। मैं कहती हूँ ये 70 साल से जो हमारे क्राफ्टमैन या हजारों साल से जो हमारे देश के कलाकार हैं, जो एक बुनकर है, किसी गांव में बैठा हुआ एक इंडस्ट्री चला रहा है, वो भी तो एक एंटरप्रेन्योर है। बिल्कुल। अब आते हैं हम औरतों पे। औरतों को तो सर यूं ही अगर हम देखें घरों में कहीं माना ही नहीं जाता कि कोई कंट्रीब्यूट करती हैं वो किसी चीज को। माना जाता है कि सिर्फ परिवार चलाना, खाना बनाना, बच्चे करना और बच्चों को पढ़ाना, ये उनका कोर काम है, मतलब इसी के लिए वो बनी है। यदि इसके अलावा वो कुछ कर लेती हैं तो भी इकोनॉमी में उसको कुछ खास जगह नहीं दी जाती। कम से कम माना नहीं जाता कि वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इकोनॉमी में। बिल्कुल। जहां तक सवाल आता है हमारे रिकॉग्नाइज करने का,
सर आज 2015 में जब मैंने क्राफ्ट विलेज की स्थापना करी थी, तब मैं लोगों तक जाती थी, मैं ढूंढती थी, गवर्नमेंट से लिस्ट निकालती थी, पता करती थी कि किस जगह पे कौन सा क्राफ्ट होता है, कौन सा शिल्पकार है जो इस काम को अच्छे से कर रहा है, और कौन कौन सी कम्युनिटीज तक हमें जाने की जरूरत है। लेकिन आज 2022 में हम बैठे हैं, बहुत आशीर्वाद है ईश्वर का कि आज लोग हम तक पहुंचते हैं। आज मुझे ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ता, क्योंकि हमने अभी तक अपना काम इस लेवल पे कर लिया है कि आज लोग हमें पहचानते हैं। हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं वो जानते हैं कि क्राफ्ट विलेज जैसी एक संस्था है दिल्ली में जहां पर वो जा सकते हैं। जहां तक उनको सही समझने का सवाल आता है, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस क्राफ्ट के को लेकर एक शिल्पकार आता है मेरे पास, क्या वो क्राफ्ट एक एंसेस्ट्रल क्राफ्ट है या क्या वो जस्ट एक हॉबी है। जब मैं कहती हूँ एक एंसेस्ट्रल क्राफ्ट है, इसका मतलब वो आपके घर में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जैसे पश्मीना का काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जैसे आप देखेंगे कि पॉटरी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जैसे आप देखेंगे काथा एम्ब्रॉयडरी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन यदि कोई शहर में बैठा मुझे कहे जी मैडम मैंने मधुबनी पेंटिंग सीखी है और मैं भी एक क्राफ्टमैन हूं, नहीं, तो आप क्राफ्टमैन नहीं है। क्राफ्टमैन वही है जो किसी गांव से आता है, जिसके दादा परदादा उस कला को कर रहे हैं, जिसके घर में कम्युनिटी में ये काम हो रहा है और वो इसको आगे लेके जा रहा है। तो पहले तो ये फर्क को समझना जरूरी है कि क्या आप एक ऑथेंटिक क्राफ्टमैन हैं, क्या आप एक ऑथेंटिक क्राफ्ट करते हैं। जब हम वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम काम देखते हैं कि जो वो काम करते हैं वो कितनी उच्च श्रेणी का काम है। काम तो सर जैसे खाना है कि हर जगह खाना मिल जाता है आपको, लेकिन आपको किसी ढाबे की रोटी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया बनी होती है, तो वो किस ढंग से प्रिपेयर करी गई है, कुक करी गई है, वो बताती है कि वो बनाने वाला खानसामा अच्छा है या बुरा है। उसी तरह कारीगरी को आप देख के बता सकते हैं कि जो करने वाला कारीगर है ये हुनरमंद है या ये सिर्फ बात करने के लिए है। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पे हम देख लेते हैं। फिर अब करते करते समझ भी आ गई है कि अच्छा ये काम तो ऑथेंटिक है और ये काम ऑथेंटिक नहीं है। जो आपने बताया कि औरतें काम करती हैं और गेहूं से निकाल के वो बास्केट्स बनाती हैं, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी यहाँ पे अपने दर्शकों को भी। जो क्राफ्ट है हमारे देश का, जो शिल्प कलाएं हैं हमारे देश की, वो हमारी जरूरतों से निकली हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश में ये सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि कोई औरत घर में बैठी बोर हो रही थी तो उसने कला कर ली, नहीं, किसी त्योहार को मनाने के लिए कला का उत्पत्ति हुई। उनके घर में जब फसल कटी तो उसके लिए किसी कला की उत्पत्ति हुई। किसी बच्चे का आगमन हुआ तो उसकी जरूरत के लिए कला की उत्पत्ति हुई। इस तरह से कलाओं की उत्पत्ति हुई। नहीं, कहीं ना कहीं जरूरत थी, नेसेसिटी थी, उसकी वजह से वो उसकी उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल। जब काथा की आप बात करते हैं तो जैसे घर में बंगाल में बच्चा होता है तो पुरानी गुदड़ियां, जो पुरानी साड़ियां होती थी, उनको जोड़ के उस पर स्टिच जो करते थे उसको काथा कहते हैं। अच्छा। अब ये जरूरत से निकला, क्योंकि जो पैदा हुआ बच्चा होता है उसे नया कपड़ा नहीं छुआते, उसकी खाल इतनी नाजुक होती है कि उसको लग सकती है। तो दादी नानियों ने कहा कि इसको घिसा हुआ कपड़ा, घिसी हुई सूती साड़ी को 2-3 को जोड़ के गुदड़ी बना के इस बच्चे को पहनाएंगे, और उस पर फिर उन्होंने कहानियां कहनी शुरू करी, कथाएं कहनी शुरू करी। तो वहां से काथा की उत्पत्ति हुई। मधुबनी को आप देखेंगे तो मधुबनी में सोहर गाया जाता है। सर बहुत सुंदर कहानी है। जब कहते हैं जब सीता की शादी हुई तो राजा जनक ने कहा कि अरे सीता तो मेरी पुत्री नहीं है, पूरे जनकपुर की पुत्री है, तो तुम सब कैसे मनाओगे। तो गांव वालों ने पत्ती डंडी घर में जो रंग मिले उसे लेके पूरी जनकपुरी को सजा दिया। तो नाम पड़ा मधुबनी। मधु से बनी मतलब प्रेम से बनी। तो मिथिला में जो पेंटिंग करी गई प्रेम से, जो सीता और राम के विवाह को बताती है, उसे मधुबनी कहते हैं। तो आप ये समझें कि ये जो देश है ना, ये सारे देशों से भिन्न है। अब इसमें आप किसी भी कम्युनिटी की बात कर लीजिए, मैं हर कम्युनिटी का आपको एग्जांपल दे सकती हूँ जिनकी क्राफ्ट उनकी कहानियों से निकल कर आए हैं, उनके घर की जरूरतों से निकल कर आए हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि मैं जो क्राफ्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं दरअसल कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही हूँ। इति मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये गुफ्तगू है ये एक 20 मिनट्स में या 25 मिनट्स में पूरी नहीं हो सकती। हम इसे सीरीज में करेंगे, फिर हम फिर वक्त निकालेंगे, फिर भी बात करेंगे आपसे। लेकिन फिर मैं चाहूंगा कि खास तौर से जैसे आप मेरे ख्याल से
उन सब आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई भी करती हैं, उनको आप क्राफ्ट्स विलेज में भी लेकर आती हैं, फिर उनकी आप कुछ जो कलाकृतियां हैं उनका आप एग्जीबिशन, नुमाइश भी करती हैं आप। जाहिर नुमाइश के जरिए वो लोगों तक पहुंचती हैं। तो ऐसी कुछ नुमाइशें की हैं आपने, और कहाँ की हैं, किस किस जगह आपने की हैं? क्राफ्टविलेज जब शुरुआत हुई थी उसकी, तो उसका मेन पर्पस था टू प्रिजर्व द रेयर क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसी कलाओं को बचाना जरूरी था। तो उसके लिए हमने लोगों तक पहले बात करनी शुरू करी। पहले हमने एजुकेशन फैलाई अर्बन पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि जो आज डिजिटल एज का जमाना है, जिस तरह हमारा यूथ बढ़ता जा रहा है, ये पुरानी चीजों में बहुत कम इंटरेस्टेड होता जा रहा है। तो हमारा मकसद था कि पहले तो इनकी कहानियां पहुंचाई जाए। तो हमारी टैगलाइन है गुड स्टोरीज अनटोल्ड, सुनी ऐसी कहानियां जो अनसुनी हैं। इसके जरिए से हमने 2018 में इंडिया क्राफ्ट वीक की स्थापना करी, जो विश्व का चौथा बड़ा क्राफ्ट वीक है। विश्व भर में सिर्फ 4-5 क्राफ्ट वीक्स होते हैं, जिसमें लंदन क्राफ्ट वीक सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर पे आता है इंडिया क्राफ्ट वीक, जिसको हमने स्थापित किया। इसके अंदर हम देश भर से जो आए हुए कलाकार हैं, इनफैक्ट खाली आर्टिसंस नहीं, ब्रांड्स भी जो आर्टिसंस के साथ जुड़ के काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो आर्टिसंस के साथ जुड़ के काम करती है, हम उन सबको आमंत्रित करते हैं, उन सबको एक मंच पे इकट्ठा करते हैं और एक इस तरह का माहौल बनाते हैं जहां पे वो डायरेक्टली बायर से इंटरेक्ट कर सके, कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर सके। और हम उनको, हर क्राफ्टमैन को एक आर्टिस्ट की तरह पोर्ट्रे करते हैं। हम किसी हाट और बाजार की तरह उन्हें नहीं बैठाते। हम मेक श्योर करते हैं कि उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट मिले। जैसे आप किसी गैलरी में जाके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को देखते हैं, एक आर्टिसन को भी उसी तरह की इज्जत दी जाती है। तो इंडिया क्राफ्ट वीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम उनका सामान बेचते हैं। और अब हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इंडिया क्राफ्ट वीक शॉप, जिस वेबसाइट पे जाके आप हमारे आर्टिस्ट्स का सामान खरीद सकते हैं। ये डायरेक्टली उनके द्वारा बनाई हुई वेबसाइट है। बहुत जबरदस्त। बहरहाल इति, आपने एक बुक लिखी है गुड स्टोरीज अनटोल्ड। मैं चाहूंगा कि उस बुक में से कोई एक स्टोरी अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें। उसमें तो बहुत सारी खूबसूरत स्टोरीज है। जाहिर सी बात है, उसमें खूबसूरत कहानियां होंगी और हर कहानी अपने आप में खूबसूरत होगी। लेकिन उतना वक्त अभी नहीं है, शायद हम आगे फिर मुलाकात करेंगे, आगे इसमें हम आगे बढ़ेंगे, कई सीरीज में हम बात करेंगे, कई किस्तों में हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए अगर आप कोई एक जो आपको बहुत ज्यादा पसंद, आपको दिल के करीब हो, ऐसी कोई कहानी आप बताएं। सर, जो किताब है इंडिया गुड स्टोरीज अनटोल्ड, जाहिर है वो इंडिया के बारे में है, इस देश के बारे में है। तो उसकी शुरुआत होती है हिमालय से लेकर और जाती है पौंडीचेरी तक, ऑरोविल तक। उसमें हमने कश्मीर को भी कवर किया है, बंगाल को भी कवर किया है, राजस्थान को भी कवर किया है। एक बहुत खूबसूरत कहानी है जो मैं बताती हूँ, जो एक इंसाइट की तरह आएगी। राजस्थान के एक जगह है भीलवाड़ा, आपने नाम सुना होगा, शाहपुरा और भीलवाड़ा। वहां पर एक पेंटिंग होती है जिसको कहा जाता है फड़ पेंटिंग। फड़ शब्द का अर्थ है पढ़ना, बांचना। तो ये कुछ 700 साल पुरानी कथा है, जिसे एक ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं जिन्हें भोपा भोपी कहा जाता है। वो एक पेंटिंग्स को गांव-गांव में जाते हैं और इन कहानियों को बांचते हैं। जब मैं कहती हूँ बांचते हैं, तो वो रात भर जाते हैं और उन कहानियों को सुनाते हैं। इट इज लाइक अ वॉन्डरिंग श्राइन। ये चलता फिरता, आप इसे मंदिर समझ सकते हैं। दूसरा, ये पेंटिंग नहीं होती है, ये एक तरह का सिनेमा था पहले, 700 साल पहले। जब भोपा और भोपी इस पेंटिंग को लेके गांव-गांव जाते थे, तो भोपी एक एक फ्रेम के आगे एक दिए को लगाती थी, लिट करती थी, और भोपा उस शॉट को गाता है। अच्छा। तो एक नरेशन चलता है गांव वालों के आगे, क्योंकि जब टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, तो गांव वाले इन कहानियों को सुन के पूरी रात अपना मनोरंजन करते थे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब फड़ पुरानी हो जाती है, तो फड़ को फेंका नहीं जाता है। अच्छा। उसको पुष्कर में जाके वो लोग प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा है। ओके। तो द आइडिया इज कि जो पेंटिंग है, जिसे हम मेरली एक पेंटिंग कहते हैं, वो किसी कम्युनिटी के लिए एक अलाइव चीज है। वो किसी कम्युनिटी के लिए एक सिनेमा एंटरटेनमेंट का जरिया भी है। वो किसी कम्युनिटी के लिए एक मीडियम है अपने एंसेस्टर्स से जुड़ने का। तो ऐसी बहुत बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे देश में भरी पड़ी हैं गांव-गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम इन कहानियों को हम कोशिश करेंगे कि हम आगे जो है वो शेयर करते रहें, कोई किसी न किसी इसको हम किस्तवार जो है हम अपने इस प्रोग्राम को करें और वो शेयर करें। मुझे भी याद है, मुझे अपना बचपन याद है थी गाँव में।
खास तौर से विंटर्स में चूंकि रातें बहुत लंबी होती हैं, तो गांव में खुली जगह पर जो है अलाव जला लिए जाते थे और वहां पर कुछ लोग जो है वो पुरानी कहानियां किस्से सुनाया करते थे और बहुत जोर जोर से गाते भी थे। आहला ऊधल कुछ इस तरह के बहुत जोर जोर से, और पूरे गांव में उसकी आवाज जाया करती थी और लोग एंजॉय करते थे। तो आधी रात इसी तरीके से गुजर जाया करती थी। तो ऐसा हर जगह होता है और ये कहानियां, ये किस्से जनरेशन टू जनरेशन जो है हैंड ओवर किए गए हैं। आज बहुत से लोग भूल गए हैं, लेकिन हमें उन्हें याद करना है। उन्हें, जैसे आपने कहा कि आप प्रिजर्व करना चाहती हैं उन क्राफ्ट्स को, उन आर्टिजन्स को। जाहिर है वो खत्म हो रहा था धीरे धीरे, जो है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, जो कुछ वो काम करता है वो लोग खरीदते नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है जब उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपनी रोजी रोटी कहाँ से चलाएगा। तो इसके लिए हमें वाकई काम करने की बहुत जरूरत है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारी नेक दुआएं, ख्वाहिशात सब आपके साथ हैं। इसी तरीके से काम करते रहें, खुश रहें और जो है वक्त निकालें। फिर हम आगे जो है फिर कोई ना कोई कहानी हम शेयर करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सो मच, वक्त निकालने का। थैंक यू। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मेहमान इति त्यागी, जो कि फाउंडर हैं क्राफ्ट विलेज एंड इंडिया क्राफ्ट वीक के। और आपको 2 बहुत ही ऊंचे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक मैजिका विमेन अचीवर्स अवार्ड और दूसरा जो हिंदुस्तान का सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है विमेन के लिए, वो नारी शक्ति पुरस्कार, उससे आपको सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपने सुना उनकी कहानी कि वो किस तरीके से क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स को भारत के अलग अलग कोनों में तलाश करती हैं और उनको पूरी दुनिया के सामने पेश करती हैं। हम इस तरह की कहानी आपके सामने लाते रहेंगे, ये कोशिश होगी हमारी। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने अजीजों से हमारे इस चैनल को, न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को रिक्वेस्ट करें कि वो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हैव अ ग्रेट टाइम।